Welcome students. Today we will start chapter number 9 of maths. This chapter is applications of trigonometry. I have already explained the trigonometry in chapter number 8. Now we will use trigonometry in some basic problems. So this is the chapter applications of trigonometry. Application means uses, and trigonometry we have learned already. There are 6 trigonometric ratios. I have explained sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. And at 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. There are 5 angles on which we calculate the values of trigonometric ratios. Is that clear? Now I will repeat how to calculate the values of trigonometric ratios. How to calculate the value of trigonometric ratios. So first, at 0 degree, first of all we have to count from 0, 1, 2, 3 and 4. Now how many maximum numbers are there? 4. So we will divide every digit by 4. We will divide every digit by 4. I am repeating this table because this is very important for the chapter number 9, and especially these 3 values, sin theta, cos theta and tan theta. Without these values we can't solve chapter number 9. So now we will take under root of this. ओनली आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करने में थोड़ा दिमाग लगाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? 0, 1, 2, 3 एंड 4. देन सबको 4 से डिवाइड करना है. आफ्टर दैट आपको क्या करना है? अंडर रूट लेना है. 0 को हम 4 से डिवाइड करें तो 0 ही आता है, उसका अंडर रूट भी 0 ही होगा. 1 का अंडर रूट 1 और 4 का होगा 2. हेयर 0, हेयर 1/2. 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4. तो 1 का अंडर रूट 1 होगा और 2 का होगा अंडर रूट 2. 3 की कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं होती तो अंडर रूट 3, और 4 का अंडर रूट फाइंड करेंगे तो 2 आ जाएगा. 4 1s are 4 एंड 1 का अंडर रूट होगा 1. इज दैट क्लियर? तो ये हमने कौन सी वैल्यूज फाइंड कर ली? साइन थीटा की वैल्यू. साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, sin 60 is under root 3/2 and sin 90 is 1. You have to remember all these values on tips, because whenever you will solve all the questions, I am sure that you will be remembered all the values. Now in cos theta we will reciprocal of these numbers. Here 1, then under root 3/2, then 1/√2, then 1/2 and 0. दिस इज द सिंपलेस्ट वे. आपको क्या करना है? सिर्फ पीछे से स्टार्ट कर देना है. फ्रॉम द बैक साइड 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. इज दैट क्लियर? नाउ tan theta, you all of us know that tan theta is equals to sin theta upon cos theta. Everybody knows it. So sin theta upon cos theta, 0/1 करेंगे तो 0, यहां इसके अपॉन में ये करेंगे तो √3 से √3 विल बी कैंसल एंड 1/√3 आएगा. दोनों वैल्यू सेम है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1. यहां 2 से 2 कैंसल, यहां आएगा √3 एंड हेयर नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड. नाउ कॉट थीटा. कॉट क्या होता है? tan का उल्टा. तो हम इसको इस तरीके से, जैसे साइन कॉस का किया था, यहां आ जाएगा नॉट डिफाइंड. आफ्टर दैट √3, 1 1/√3 and 0. Is that clear?
तो हम कर चुके हैं साइन, कॉस, टेन एंड कॉट. नाउ वी नो दैट सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा. अब ये जनरल फॉर्मूले हैं जो हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़े हैं. तो सेक थीटा के लिए क्या करना है, कॉस की वैल्यूज को उल्टा करना है. 1 को उल्टा करेंगे 1 ही आएगा, इसको उल्टा करोगे तो 2 अपॉन √3. हेयर √2, हेयर 2 एंड हेयर नॉट डिफाइंड. Not defined. Cosec theta will be same. We will reciprocate. Not defined. After that 2 √2, 2 upon √3 and 1. This is the table of trigonometric ratios which is used to calculate the values of sin 0, sin 30, sin 60 and from sin 30 to tan 60. These 9 values are most important values for this chapter. So you have to remember these values on tips. Sin 30 1 upon 2, sin 45 1 upon √2, sin 60 √3 upon 2. Same cos 30 √3 upon 2, cos 45 1 upon √2 and cos 60 1 upon 2. Again tan 30 will be 1 upon √3, tan 45 will be 1 and tan 60 will be √3. So these are the values of trigonometric ratios. Now I will explain what type of question will be asked in this chapter. So okay, one more thing is also there, that sin theta is equals to P upon H, cos theta equals to B upon H and tan theta equals to P upon B. ये सब तो आपको रिमेंबर होगा. ऐसे ही साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, H अपॉन P. कॉस का उल्टा होता है सेक, H अपॉन B एंड टेन का उल्टा होता है कॉट. ये फॉर्मूले आपको लर्न करने के लिए आई हैव गिवन ए ट्रिक दैट PBP पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड HHB हिंदुस्तान हरा भरा. ये ट्रिक्स भी दिए जाते हैं. एक मूवी में आता है वो ट्रिक भी है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल. पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल. इट मींस ये वाला फॉर्मूला होगा साइन का, ये वाला फॉर्मूला होगा कॉस का, ये वाला फॉर्मूला होगा टेन का. और इन्हीं के रेसिप्रोकल जो होते हैं उनके फॉर्मूले आप इजीली फाइंड कर सकते हो उल्टा करके. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देन हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. हमारे 16 क्वेश्चंस हैं, उनको हमें सॉल्व करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये कोई ट्राइंगल है. ऑलवेज बात तो हमारे यहां राइट एंगल ट्राइंगल की होगी ऑब्वियसली, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल डिपेंड्स ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल. दैट क्लियर? दिस एंगल इज 90 डिग्री. मैं बोलता हूं आपको कि ये 30 डिग्री है और मैंने बेस दे दिया 5 मीटर. व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल? यू हैव टू फाइंड द हाइट एंड मैं इसको परपेंडिकुलर ले लेता हूं, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस. यू हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस. दिस इज द क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि हमें दिया क्या है, बेस. क्या दिया हुआ है? बेस. बेस और परपेंडिकुलर के बिटवीन रिलेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है? तो वो होता है tan थीटा में,
क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन थीटा की जगह हम लिख देंगे कितना, 30। परपेंडिकुलर कितना हमें पता ही नहीं है, बेस कितना है 5 मीटर। टेन 30 की वैल्यू अभी अभी हमने करे थे क्वेश्चन, सॉरी वैल्यूज फाइंड करी थी, तो क्या आई थी 1/√3 और p अपॉन 5। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 5/√3। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब आप इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, डजंट मैटर, बट हमें सिर्फ इतना सा काम करना है और इस चैप्टर में इन कैलकुलेशंस के अलावा कोई अदर कैलकुलेशन नहीं आएगा। अच्छा, ये हमने परपेंडिकुलर फाइंड कर दिया, अभी हमें फाइंड करना है क्या, हाइपोटेनस। तो हम कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। अदरवाइज देखो, बेस और हाइपोटेनस के बिटवीन रिलेशन होता है कॉस थीटा में, बिकॉज कॉस थीटा इज b अपॉन h। सो कॉस 30 इज इक्वल्स टू b यानी कि 5 अपॉन h। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। कॉस 30 होता है √3/2, 5 अपॉन h, तो h हो जाएगा 10/√3 मीटर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया है, बस इतना सा आपको एक रफली कैलकुलेशन होगा, बस नॉर्मल सा, एंड आप चैप्टर को इजीली सॉल्व कर पाओगे। इज दैट क्लियर? सो नाउ आई एम स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 9